So, chapter number 3 of history, in which we are taking famine. Famine is basically a natural disaster, natural occurrence, natural happenings. If you see in British time India, we have two major famine in our country. Famine means अकाल, जब खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, एग्रीकल्चर नहीं होती है, फार्मिंग नहीं हो पाती है, बारिश नहीं हो पाती है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी अकाल आ जाता है। ऐसा नहीं कि सूखा पड़ने से, बारिश ना होने से अकाल आता है। बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी कभी कभी फेमाइन कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उससे सारी क्रॉप खराब हो जाती है। अगर अभी आप देखोगे नॉर्मली अगर 10 दिन बारिश हो जाए ना, यू कैन सी द रेट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सब्जियों के और फलों के दाम देखें ना, कहाँ भाग जाएंगे एकदम से। अगर 10 दिन लगातार बारिश हो जाए, अगर उस 10 दिन की बारिश में अगर सपोज करो वेजिटेबल्स खराब भी नहीं होंगे ना, तब भी फार्मर्स, किसान, शॉपकीपर्स, वेजिटेबल्स वेंडर्स बोलेंगे कि बारिश होगी, सब्जी खराब हो गई, महंगी हो गई, मंडी में नहीं आ रही है, मंडी में जाम लग गया, ट्रक फंस गए हैं, धरती धस गई है, भूकंप आ गया, तो इसलिए महंगी हो गई है। अगर बारिश ना हो तो ड्रॉट कंडीशंस बनती हैं, बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर सफर करती है, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो भी शॉर्टेज ऑफ गुड्स, शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल्स, शॉर्टेज ऑफ फूड्स होगी, तो भी फेमाइन कंडीशन बन सकती है। बट इफ यू सी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इन 1876 to 78 we have famine condition in our country, especially if you see अगर आप देखें you will see in Punjab, okay, in Western UP, actually you know this was UP, उत्तराखंड बनने से पहले यूपी यहाँ तक था, ये उत्तराखंड एक अलग स्टेट बन गया, तो ये जो वेस्टर्न यूपी है ना, इधर वाला, इधर वेस्ट है ना, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो जो इधर वाला यूपी था ये वाला रहता, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र, ओके, पंजाब, मद्रास, नाउ इट इज नोन एज चेन्नई, उस समय इसको मद्रास कहते थे, कभी मुंबई को बॉम्बे कहते थे, ओके। So these were the important regions that were suffered by famine in 1876 to 78। और ये जो फेमाइन था इतने बड़े लार्ज स्केल पे था कि हजारों लाखों लोग मर गए। Why? With the starvation, भूख की कमी से, खाने पीने की चीजों की वजह से जो नहीं मिल पा रहे थे लोगों को, ठीक है। Just spelling the word B. यहाँ पर पहले U आएगा फिर आता है। We are U और N. we are we होती है, we are given क्यों नहीं? We are Third form. स्पेलिंग होती है, ठीक है ना, सही है, ओके। चलिए नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट नाउ प्लीज। So these are the important regions that were suffering that time with the starvation, with the famine, and this was at a large scale. Lakhs of people were dying with the starvation because there was a shortage of food, shortage of food grains, shortage of vegetables. Are you getting the point? Yes. Now second thing, in 1896 to 97, 1998 और 97 में एक और बड़ा फेमाइन आया इंडिया के अंदर, that was facing Bengal, बंगाल में। और इन दोनों फेमाइन में अगर हम देखें तो इतने लोग मारे गए क्योंकि खाने पीने की चीजें नहीं थी, फूड ग्रेन्स नहीं थे, British government was not doing any reforms in agricultural sectors, no loan facility formally। देखो
That time we have money lenders. That time we have money lenders and landlords that were giving them loan facilities, but they were providing them at a very high rate of interest. That was very panic for the small peasants and farmers. And sometimes if they are not able to repay it, return it, they are snatching their lands. Okay, so these were two major climatic famine conditions in our country that time. That was considered at a large scale. Second thing, what were the causes of famines? Basically, if you see, famines are the natural occurrence and happenings, and behind that we have some natural causes. Number one, drought. If there is no rainfall or less rainfall, definitely there will be no irrigation facilities for agriculture sector. And due to the lack of irrigation facilities, food grain production will be suffered and it will be reduced. Okay, this is drought condition due to the less rainfall or no rainfall. Second thing, crop disease. Now you can see that in India we are having different fertilizers, different chemicals that are used in agriculture sector to kill the pesticides and pests definitely. And we are taking care of the crops. But that time we are not having such facilities. Where are you going? Go there. Go there. So at present time we are having different medicinal products, chemicals that are used to procure the crops and make them safe and secured and increase the agricultural production. But that time there were many diseases due to the lack of facility, due to the lack of money. The peasants were not able to take care of the crops, and due to the diseases there were many crops that were destroyed, and with that we had that time lack of food grains. जब बीमारियाँ हो जाएंगी, बीमारियों की क्या होती है, अगर हमें बीमारी हो जाए, अभी आप देख लो कोरोना आया था ना, कितने लोग मारे गए, पॉपुलेशन थोड़ी सी आई नहीं थी, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। किसी कंट्री के अंदर अगर हम समझे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी हर 10 साल में एक बीमारी ऐसी आ जाए कि पॉपुलेशन अपना कंट्रोल करे, दिस इज नॉट ए गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क ऑन दैट कंट्री कि उस कंट्री ने प्रिक्योर क्यों नहीं किया, अपने लोग देश के लोगों को बचाया क्यों नहीं। लाइक दिस इफ़ वी आर हैविंग क्रॉप डिजीजेज, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली विल फेस द फेमाइन कंडीशन। अभी गेटिंग द पॉइंट? सेकंड थिंग, फ्लडिंग। देखो बारिश ना हो तो ड्रॉट आता है, और अगर बारिश ज़्यादा हो तो फ्लड आता है। एंड ड्यू टू द फ्लड वी ऑल्सो हैव लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दिस इज फिक्स एंड सम fixed amount of rainfall that is required for particular crops. For example, अगर हमें गेहूँ लगाना है तो 75 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। अगर हमें राइस ग्रो कराना है तो लगभग 200 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो पता लगे जितना पानी भर गया खेतों में, तो बेचारे राइस तो डूब जाएंगे, खराब हो जाएगी ना। विंटर में अगर सपोज को 250 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए और चाहिए कितनी हमें 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो बेचारे गेहूँ क्या होंगे, गेहूँ तो उग नहीं पाएगा, गल जाएगा ना तो बीज। और अगर खड़ी क्रॉप्स में, खड़ी फसल में अगर बारिश वगैरह देखा हो नॉर्मली जो राइस जो बेसिकली वीट होता है उसका पौधा गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो मिट्टी में वो धंस जाता है और फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। उसके जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे कुपोषण का शिकार हो गए होता है ना। अगर किसी को पर्टिकुलरली डाइट ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिले तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ऐसे ही ज़्यादा बारिश होने से फसल खराब हो जाती है। ओके, तो अगर हेवी रेनफॉल है तो फ्लड कंडीशंस बनती है। तो दी आर द कॉजेज बिहाइंड द फेमाइन कंडीशन। दैट टाइम आज भी ऐसा हो सकता है, बट अब गवर्नमेंट उसकी प्रिकॉशंस रखती है कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल फसल खराब हो गई तो पीजेंट्स या फार्मर्स को कुछ कंपनसेशन दे देती है गवर्नमेंट।
पीजेंट से खुद वो राइस या वीट खरीद लेती है किसी भी कीमत पर कैसे करके, ताकि उनको लॉस ना हो, ताकि उनको फेमाइन कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट फेस ना करना पड़े। नाउ सेकंडली अब इसके कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट क्या हुए? लैक्स ऑफ पीपल वर डाइड दैट टाइम विद द स्टारवेशन। भूखमरी के कारण, फूड ग्रेन्स की कमी के कारण हजारों लाखों लोग मारे गए, हजारों बच्चे मारे गए। खाने की पता ही नहीं सर आपको, तो इट वाज वेरी सीरियस एंड हिलियस कंडीशन दैट टाइम। सो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसी आती है तो उसका कंसिक्वेंसेस बड़ा ही डिजास्टर्स होता है। सेकेंडली नाउ पीजेंट्स रिवॉल्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं पीजेंट्स रिवॉल्ट। बहुत सारे किसानों ने कुछ रिवॉल्ट किए ब्रिटिश टाइम में, उसमें जो इम्पोर्टेंटली वन वॉज मोकला रिवॉल्ट दैट वॉज फेस्ड इन 1860 to 70s and it was in Kerala. Basically the peasants of Kerala were known as Mokla. केरला के जो किसान थे उनको मोकला कहते थे, and the revolt that was done by them that was known as Mokla revolt against the moneylenders, zamindars and landlords. Are you getting the point? Second thing, in Deccan region, Maharashtra, Karnataka, some parts of Tamil Nadu, some parts of Madhya Pradesh, Goa, that is known as Deccan region in our country. इसको Deccan region कहते हैं। और उस रीजन में गोवा जो था वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ, दैट इज नोन एज डेक्कन रिवॉल्ट, एंड दीज रिवॉल्ट्स वर लेड बाय द पीजेंट्स फार्मर्स ग्रुप्स। विराट, यू आर आउट ऑफ लाइन नाउ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रिवॉल्ट्स? हाई टैक्सेशन, high rate of interest and exploitation of peasants, farmers and cultivators by the moneylenders, by the zamindars, by the landlords, and definitely by the British government that time. That's why these revolts were done by the peasants of Kerala that were known as Mokla, peasants of Goa and Deccan region that were very depressed and very harassed that time because they were unable to grow the food grains, crops, because they have the lack of money. If they are taking the loans, they have to pay the high rate of interest, and if they are doing some production, they have to pay the high taxations. Okay, and they are being exploited by the moneylenders and landlords that time. Are you getting the point? Yes, sir. Now, what are the consequences of results? What are the consequences and results of these revolts? अगर इसका देखें, इसका कंसिक्वेंसेस और रिजल्ट देखने को ये मिला कि जो स्मॉल पीजेंट्स, फार्मर्स, कल्टीवेटर्स थे दैट वर पेइंग द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट वर पेइंग द हाई टैक्सेशंस, एंड मनी लैंडर्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स हैविंग देयर अकाउंट्स बुक, जिसको बही खाता बोलते हैं। पहले होते थे ना, मुनीम जी होते थे, बही खाता रखते थे, किसको कितना लोन दिया, किसको कितना पैसा उधार दिया, कौन कितना वापस दे के गया, किस पे कितना अभी बचा हुआ है, किस पे कितना इंटरेस्ट लगना है, कौन इंटरेस्ट दे के गया तो लोन अभी उस पर प्रिंसिपल बच गया, मूल बच गया, इतना पैसा उसके ऊपर अभी निकलता है। ये जो उनके अकाउंट्स बुक थे ना, वही खाते थे, दैट वाज बर्न्ड बाय दैट रिपोर्ट वाज बर्न्ड बाय द पीजेंट्स, फार्मर्स एंड द कल्टीवेटर्स। समझ में आया? उनको फाड़ दो, फाड़ के डिस्ट्रॉय कर दो, ना लिखा रहेगा ना मांगेगा, और ना कुछ समझ में आएगा किससे कितना मांगना है। Are you getting the point? And you know that time money lenders exploiting the small peasants and farmers, 100 रुपये उधार दिया, लोन चुकाते चुकाते की तरह बूढ़ा हो गया, लोन ही नहीं चुक पाया, उसका वापस रिपे नहीं हो पाया, रिटर्न नहीं हो पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया। इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी, इंटरेस्ट देते रहते, प्रिंसिपल वहीं पर खड़ा रहता था। प्रिंसिपल समझते हो ना, मूल धन अमाउंट जो उन्होंने लोन लिया था वो वहीं पे खड़ा रहता था, वो लोन के ख़त्म करने के लिए इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, इंटरेस्ट ही पूरा नहीं हो पाता था, उनकी ज़िंदगी भी जाती थी। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट गोदान। मुंशी प्रेमचंद सुना आपने? मुंशी प्रेमचंद सुना है? मुंशी प्रेमचंद किस किस ने सुना है? रेज द हैंड्स। वेरी गुड।
यू आर ए वेरी गुड लर्नर, कितना पढ़ते हो आप, भाग भाग के लाइब्रेरी जाते हो। मुंशी प्रेमचंद इसी टाइम के थे और उन्होंने लिखी थी एक गोदान, और उस गोदान में उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि कैसे मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, जमींदार छोटे छोटे पीजेंट्स और फार्मर्स को जब लोन देते थे तो कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते थे, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते थे, उनके ऑक्सी छीन लेते थे, उनके घर छीन लेते थे, दे आर अनेबल टू रिटर्न द लोन और अमाउंट वट एवर। ओके, सेकेंडली peasants and farmers that time looted the food grain shops। अभी जो मोकला एंड द peasants in गोवा, ये जो ग्रुप्स थे peasants के, फार्मर्स, कल्टीवेटर्स के, स्मॉल peasants and farmers, they looted the food grain shops and stores। जो दुकानें थी वहाँ पे, बड़े बड़े सेठ, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, जो बड़े बड़े सेठ बैठे थे स्टोर कर करके छुपा काला बाजारी करने के लिए, उनकी जो दुकानें थी फूड ग्रेन्स की, आपने बहुत सारी हिंदी की मूवी भी देखी होंगी, है ना, उसमें भी दिखाते हैं अंदर बोरियां रखी होती हैं, तो राशन लेने आते हैं, राशन नहीं देते हैं, कहते खत्म हो गया। तो आप सोचो, दिस वाज द ब्लैक मार्केटिंग दैट टाइम। लेकिन जब क्रांति आती है, रिवोल्यूशन आता है, चेंज आता है, तो कभी ना कभी खत्म हो जाती है। तो peasants and farmers के जो स्मॉल peasants and farmers थे, स्मॉल पुअर पीपल थे, they also looted the food grain shops and stores that time। Are you getting the point, beta? Yes, समझ में आ रहा है? Next thing, money lenders, house fire case। Peasants and farmers were suffering that time, they are being exploited, they were so depressed। वो इतने उदास थे, इतने नीरस थे, इतने परेशान थे, उन्होंने गुस्से में जो मनी लैंडर्स, जो बड़े बड़े हाउसेज थे, that house caught in the fire, उनके घरों को आग लगा दी। Are you getting the point? चलिए, thank you very much।